Let's start the introduction of the chapter from your Prose, chapter number 4, A Truly Beautiful Mind. This is adopted one, or you can say anonymous. This chapter actually is a bit similar to your class 11 chapter. You must go through the Hindi of the chapter Albert Einstein at School. This is chapter number 4 in class 11 supplementary. You must go through the Hindi interpretation of the chapter by Patrick Pringle. That will also give you some insight about this chapter. That is also a very beautiful chapter about his schooling days. So, a truly beautiful mind means a genius who was born as a genius, and in his initial days or in his early days he was considered to be a very fearful figure, but after that one he proved one of the greatest scientists this earth has ever produced. And I am talking about none other than your Albert Einstein, the great physicist who gave us theory of relativity E is equal to mc square. Okay, this chapter it's not a special one about his schooling days, but it throws light on his from the very beginning of his life, like birth and how the mother was considering, what the friends were thinking about him, then what he was thinking about his newly born sister Maja, and in his school days also there are certain explanations in the chapter. Then he was very good at mathematics and physics, and he was having great interest in the music also. Then he met a Serb girl, Maliva Maric, and especially in the Zurich when he was studying over there in a university. They both come close, and lastly in 1903 they got married. But before to that, in 1902 he got his first job, was a technical expert in a patent office in Bern, and he used to call his desk as a Bureau of Theoretical Physics. And in 1905 he was very famous for producing his first papers on special theory of relativity E is equal to mc square, where E stands for energy, M for mass, and C for speed of the light in a vacuum. Then he got married to Maliva in 1903, and of course that could not prolong in a better way, and in 1919 they got separated, and at the same year he married to his cousins, that is Elja. Then in the 1915 he published a general theory of relativity which proved a new interpretation of gravity. And eclipse of the sun in 1919 was the first proof of his achievement. So he was being said as a scientific revolution in this field, and for that one in 1921 he was being awarded Nobel Prize for Physics. And after that one in 1933, when the Nazis came into power in Germany, he left Germany and migrated to United States of America. But he was very worried about that these Nazi people can prepare a nuclear bomb. But during that particular period itself, he wrote a letter to Franklin D. Roosevelt also, Franklin D. Roosevelt, on 2nd August 1939. But things won't work out, and lastly, this Americans also developed secretly atomic bomb and dropped in August 1945 over Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki, as you are aware of. And then he was totally shattered, and he was very worried about the humanity, and he campaigned there in the United Nations also, and on the many democratic platforms of the world. In fact, he was using his popularity for campaigning for peace and democracy in the world. Lastly, he died in 1955 at the age of 76, and he was a great visionary and a world citizen, as a scientific genius, as we people know. Okay, now let me just cover up what I have just covered in English. ये जो पाठ का नाम
है यहाँ पे अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक बहुत ही सुंदर मस्तिष्क। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है या एक ऐसे आदमी पे लिखा गया एक शीर्षक है एक पाठ का, जिसको कि दुनिया बहुत बड़े जीनियस के नाम से जानती है, बहुत ही कुशाग्र दिमाग के नाम से जानती है। और ये एक भौतिक वैज्ञानिक जो हुए हैं पृथ्वी के ऊपर, एल्बर्ट आइंस्टीन के ऊपर लिखा गया चैप्टर है। इसका कोई पर्टिकुलर राइटर नहीं है और ये जो है किसी अज्ञात सोर्स से कहीं से लिया गया चैप्टर है। हालांकि ये उसकी पूरी जीवनी को कवर करता है और यूँ कहूँ कि इसके जन्म से लेकर मृत्यु तक के जितने भी तथ्य हैं वो इसमें सारे समावेशित किए गए हैं। आइए सबसे पहले एक बार इसमें से देखते हैं क्या है। उसका जन्म दिखाया गया है 14 मार्च 1879 को जर्मन के उल्म सिटी के अंदर। और इसकी माँ भी इससे डरती थी क्योंकि इसका सिर बहुत बड़ा था और ये हर एक बात को दो दो बार कहता था। इसको एक बहुत ही डरावनी आकृति मानती थी इसकी माता। और जो इसके दोस्त थे कोई इसके साथ नहीं खेलता था और वो भी इसको बोलते थे भाई ये तो बहुत ही उबाऊ टाइप का बंदा है, बहुत ज़्यादा उबाऊ टाइप की हरकतें करता है, अकेला खेलता था ये। और ये इसकी जो एक नई बहन पैदा हुई थी जिसका नाम माजा था, कभी कभी उसको कहता था कि इसके पहिए कहाँ हैं, क्योंकि ये मैकेनिकल टॉयज़ के साथ बहुत ज़्यादा खेलता था। फिर इसका स्कूल का वर्णन है। स्कूल के अंदर जो है ये इसका कोई अच्छा व्यवहार नहीं रहा टीचर्स के प्रति। केवल मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के अंदर ये बहुत अच्छा था, वही टीचर इसको लाइक करते थे और बाकी टीचर्स इसको पसंद नहीं करते थे। इसने को वायलिन बजाना भी जो है बहुत अच्छा था और ये 6 साल की उम्र में जो है इसने वायलिन बजाना शुरू कर दिया था। फिर ये जैसे हाई स्कूल इसने पास किया, ये ज्यूरिख की एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए गया। वहाँ मलिवा मारिक करके एक लड़की जो सर्बियन ओरिजिन की थी, सर्ब थी, वो सर्बिया से थी, उससे प्यार हो गया। परंतु इसकी माताजी ने जो है इसकी अनुमति नहीं दी शादी की शुरू में। और जो है 1902 के अंदर इसको टेक्निकल एक्सपर्ट जो है पेटेंट ऑफिस बर्न के अंदर पहली नौकरी मिली, जिसको कि अपनी टेबल को कहा करता था ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिज़िक्स। फिर 1905 के अंदर इसके कुछ आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि एक विशेष सिद्धांत है सापेक्षता का, वो प्रकाशित हुआ और उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। E = mc², जिस सूत्र को आप जानते हैं। 1903 के अंदर इसने मलिवा मारिक से शादी की और 1919 में इसका तलाक हो गया। काफ़ी झगड़ा चला इनका आपस में और उसी साल उसने जो है एल्जा अपनी जो है जो यूं कहिए कि चचेरी बहन उससे शादी कर ली। 1915 के अंदर इसकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई और जिसमें कि इसने जो है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की जो है इसने एक नई डेफिनेशन प्रदान की दुनिया को। और फिर आगे 1919 में जो है एक सूर्य ग्रहण आया जिसकी इसने पूर्व सूचना दे दी थी और उससे इसके जो है काफ़ी प्रसिद्धि मिली। 1921 में इसको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। फिर 1933 में जब जर्मनी के अंदर नाजी हिटलर की जो पार्टी थी वो सत्ता में आई और इसको जो है वहाँ से भाग करके अमेरिका जाना पड़ा। इसको डर था कि कहीं नाजी लोग ये जर्मनी के लोग कोई बम ना बना लें, ख़ास करके एटम बम। और इसने जो है इस एटम बम के बारे में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट करके जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए उसको जो है 2 अगस्त 1939 को पत्र भी लिखा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ तक कि जो है अमेरिका ने ही जो है बहुत ही भूमिगत तरीके से या एक तरह से छुपा करके एक एटम बम बनाया जिसको उसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अगस्त 1945 में प्रयोग कर लिया। इससे एल्बर्ट आइंस्टीन को बहुत ही गहरा धक्का लगा और उसने जो है इस चीज़ को यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी उठाया और यहाँ तक कि उसने जो उसकी प्रसिद्धि थी उस प्रसिद्धि को उसने शांति और दुनिया में प्रजातंत्र के लिए प्रयोग करना चाहा। और आखिरी में 1955 के अंदर 76 साल की उम्र में उनका स्वर्गवास हो गया। उसको दुनिया के एक महानतम
विजनरी, दूरदर्शी और जो है वैश्विक एक सिटीजन के नाम से आज वो प्रसिद्ध हैं। और जितनी उनको प्रसिद्धि साइंटिफिक जीनियस के साथ के रूप में मिली, उतनी ही प्रसिद्धि उनको जो है एक विजनरी और एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में मिली। तो ये था इस चैप्टर का हिंदी रूपांतरण। शायद आपको जो है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये एक बार मैं फिर बता दूं, ये चैप्टर ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड मीन्स ए ग्रेट जीनियस एल्बर्ट आइंस्टीन के ऊपर लिखा गया चैप्टर है, जो कि उसकी बर्थ से लेकर के उसकी डेथ तक उसके क्या थॉट थे, क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या उसकी पर्सनल लाइफ थी, स्कूलिंग लाइफ में कैसा बिहेव रहा उनका, इन सब बातों को कवर करता है। सिंपल चैप्टर है, कोई थीमेटिक इसमें कोई जो है हिडन एजेंडा नहीं है। With that, I finish this introductory part and I'll be there on the interpretational part very soon.